والسماء ذات البروج. تو جی شکر ہے رب کا کہ آپ بھی سیف زون میں ہیں، آپ کی رائڈ بھی اس طرح بمپی نہیں ہے جس طرح زون 1 کے 4 ستاروں کی تھی، 2 دن کہیں 2 دن کہیں۔ شکر ہے آپ بھی سیف ہیں۔ 22 23 24 میں ہلکا پھلکا اپنا صدقہ مالی معاملات کو سوچ کے نکال دینا ہے، تاکہ تھوڑی بہت بھی مال کی انسیکیورٹی یا کوئی نقصان آپ کو پریشان نہ کرے۔ 22 23 اینڈ 24 اگست، 25 اور 26 اگست میں اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے نا لبرا، تو بھی ماشاءاللہ آپ سیف ہیں۔ 27 اور 28 اگست کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہیں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ٹریول کرنا ہے ٹریول کریں۔ جو ہے اس وقت جن بھی رشتہ داروں سے اگر ملنا پڑتا ہے تو بھی آپ محفوظ ہیں، سیف ہیں لبرا۔ کرم ہے اللہ پاک کا کہ آپ کی یہ ڈیٹس جو ہیں فیملی فرنٹ پہ اور ٹریولنگ والے فرنٹ پہ سیف ہیں۔ چاہے آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر ہی سفر نہ کرنا ہو، کسی بھی رشتہ داروں کی نیت سے یا رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہو کہ ویکیشنز پہ اگر جانا ہو، تو بھی آپ الحمدللہ سیف ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی بڑے ستاروں کی طرف، اور بڑے ستارے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ جو ہے ایک تو ذاتی زندگی میں تھوڑی سی بمپی رائڈ ہے لبرا، اس کو ذرا سا سمجھ کے چلیے گا۔ آپ کے جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں، انسان کے سوشل تعلقات ہوتے ہیں، بزنس ریلیشن شپس ہوتی ہیں، ازدواجی زندگی ہوتی ہے، آپ نے کیئرفلی چلنا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جیون ساتھی آپ کا بن سکتا ہے، تو بھی وہاں پہ جو ستارہ ہے وہ وہاں پہ آپ کے لیے سیف پوزیشن میں ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ستارہ بالکل ٹھیک ہے، اور لیکن جو ہے سلیکشن جو ہے نا وہ عقل کے میرٹ پہ ہونی چاہیے، ایموشن پہ نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ذرا پوائنٹ کی ڈیپتھ کو خود ہی آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے اپنے لیے۔ اچھا جی، ہیلتھ وائز ستارہ اگر آپ احتیاط کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو کسی بڑی اس میں سے نہیں گزرنا پڑے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو خدا نہ کرے صحت میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوئی امتحان آپ کو پریشان نہ کرے، کیونکہ اس وقت لبرا جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے، اسپیشلی 11 اگست سے جو ٹائم شروع ہوا اور پھر 24 اگست سے جو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے اس ویک سے، مینٹل کیوس جو ہے نا وہ سیدھا ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کو، اور فزیکلی اگر آپ ویک ہوں گے تو آپ اپنی جاب میں پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ جتنا کوشش کریں آپ اپنے آپ کو مینٹلی پیسفل رکھیے گا، یہ ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مینٹلی پیسفل رکھنا ہے، یہ ایک احتیاط بالکل کیجیے گا، ورنہ وہ جو مینٹل وہ ہے نا انسٹیبلٹی، وہ دونوں ایریاز کو ہٹ کر رہی ہے، فزیکلی بھی اور اپنا ورک ایریا بھی آپ کا ہٹ ہو سکتا ہے۔ اس وقت پھر آپ کے حاسدین کو بھی موقع مل سکتا ہے لبرا کہ وہ آپ کے اوپر کوئی چیزیں جو ہے بیک سٹیبنگ کریں یا آپ کی پوزیشن یا آپ کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو پلیز اس وقت کچھ چیزیں جو ہیں لبرا آپ کے ہاتھوں میں ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ فائنینسز وائز جو ہے وہاں پہ آپ اللہ کا فضل ہے، اگر آپ پیسے کو رولنگ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ارن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے کسی وراثتی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل آپ کی فیور میں ہے۔ تو آپ اپنے ان مسائل میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ریزولو کر سکتے ہیں۔ پھر ایک ایریا 24 اگست سے لے کے یہ جاتا ہے جی ٹائم 4 سپٹمبر تک، اگر کسی دنیاوی خواہش کے رستے میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو بھی آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے لبرا۔ اگر کوئی لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات
दोस्तियों से रिलेटेड मामलात या बच्चों से रिलेटेड मामलात आपको इनसिक्योर अगर करते हैं तो इंशाल्लाह जैसे ही 4 सितंबर गुजरेगी मामलात पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। टिल देन थोड़ा सा आपने इसको स्लो चलना है, क्योंकि वहाँ पे जो सितारा है वो थोड़ा सा हमें कह रहा है एनी कियोस क्रिएट कर रहा है, कोई एनी बेवजह इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। कोई नुकसान नहीं होगा रब के हुक्म से इंशाल्लाह, लेकिन आपने अगर इसको समझ के चलेंगे तो आपको इनसिक्योरिटी भी तंग नहीं करेगी लिब्रा, क्योंकि दिमाग पे है हलचल ही हलचल इस वक्त में जो है। तो ये आपने बेस्ट है कि या अल्लाह हो या सलामो आपका इसमें आज़म भी है, उसको पढ़ते रहिए। अल्लाह से दिमाग की सलामती, रिश्तों की सलामती, जान की सलामती मांगते रहिए। तो ये जो नेगेटिव रेडिएशन है ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। और ये जो सिचुएशन कियोस सा है, मैं तो ये मशवरा दूंगी जहाँ कहीं पानी में मछलियाँ हों जाके उन्हें कोई भी खाने की चीज़ डाल दें, आटे की गोलियाँ, कच्चे चावल, कीमा, गोश्त, कुछ भी आप मछलियों को डाल सकते हैं। एहसन सदक़ात में से है। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि या तो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और ना ही जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं चीज़ों को लेकर वो एनर्जीज अच्छी होती हैं। तो इस चीज़ को अगेन चेक करके करेक्ट करें। दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि आप या तो ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए ले रहे हैं, या फिर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर आप पाएँ ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तीसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि या तो आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में वो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में अगर मोटिव्स, इंटेंशंस आपके या फिर जो भी इंसान आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं उनकी ऐसी एनर्जीज हैं तो ठीक है, कभी कभी हमें थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं है तो उसको चेक करके करेक्ट करें। अगर जो इंसान हैं उनके मोटिव्स और इंटेंशन पे थोड़ा सा भी डाउट आए तो ज़रूर कॉशियस रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड एक ट्रांजिटरी पीरियड की बात करता है और किसी लेवल पे चेंजेस की भी बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके से आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, अगेन किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है मेंशन करना, लेकिन फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहे हैं। एंड पीछे अगर कुछ इश्यूज, मसले थे तो उनसे कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखिए ठीक ठाक ये वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नॉर्थ नोड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, यानी कि किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई आपकी डिज़ायर है, विश है और आप बहुत सेफ चल रहे हैं, या फिर आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क आप जब तक नहीं लेंगे, तब तक आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ सी ग्रीन, सी ब्लू या फिर जो भी समुद्र के रंग होते हैं वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है ये बहुत अहम है। तो रिमाइंडर आपके लिए जो मैं आपको पिछले 2-3 हफ्तों से दे रही हूँ कि आपका अपना रूलर वीनस जो है ये आपके 11वें घर में लियो में रेट्रोग्रेड है। पहले सन भी वहां पर था और अब सन ट्रांजिट करके आपके 12वें घर में आ जाएगा, जहां पर पहले से मार्स है और उधर मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपको ये रिमाइंडर देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आपको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन और ग्राउंडेड रखना है। इस हफ्ते की सबसे अहम चीज़ ये कि जैसे हम कहते हैं ना, यू कैन हियर द म्यूजिक ऑफ यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे। आपको जैसे होता है ना, यू हैव टू लिसन, आप बोलने की बजाय सुनिएगा। हो सकता है किसी कोई दुश्मन भी कोई आपको बात कह रहा है, उसमें से आपको आपका मतलब मिल जाए, या कोई ऑडियो है, कोई वॉइस है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगी और कोई अहम फैसले करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप इस हफ्ते जैसे होता है ना, आपका कनेक्शन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दुनिया के साथ भी, अपने रब के साथ भी, डिवाइन के साथ भी और यूनिवर्स के साथ भी। और आपने इस हफ्ते जो चीज़ है ना, जो अहम चीज़ है वो ये है कि डिस्कशन को आपने पीछे नहीं छोड़ना। आप डिस्कस करें हर वो चीज़ जो आपके दिल में है, टेक इट आउट। और इसको ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम आपके लिए कैथारसिस बहुत ज़रूरी है। कैथारसिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो कहें जो आप कहना चाहते हैं, या जो चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, सो वो सब आप कह डालिए। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ की पूरी केयर करनी है। आपकी हेल्थ में जैसे पाँव में प्रॉब्लम आ गया, जैसे चलते चलते आप खुद को चोट लगा सकते हैं, दोज काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, उसकी आपने केयर करनी है। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि अपने थिंग्स टू डू की लिस्ट बना लेनी है, अपना स्केड्यूल बना लेना है, टाइम टेबल बना लेना है, लिस्ट बना लेनी है, और उसके हिसाब से फिर लोग जो है वो अपने उसे लेफ्ट राइट नहीं होना। उसके बाद आपकी कोई पुरानी बीमारी सब तेरी रिलैप्स कर सकती है, कोई पुरानी इन्फेक्शन, कोई पुरानी बीमारी, सो लिहाजा परहेज आपने सब बहुत ज़्यादा करना है अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पुरानी बीमारी का रिलैप्स ना हो। और दूसरा एक और बात अहम कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप किसी से सिंबॉलिकली अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो आपको उल्टा बता सकता है। सो इस तरह से आपने डिस्ट्रैक्ट जो है ना होने से बचना है, लोगों के धोखे से बचना है। लोग आपसे गलत झूठ बोलकर आपके पैसा, या इससे हम कहते हैं चोरी या पैसा ले लेना, या आपका जिसे कहते हैं आपसे जैसे होता है ना कि कोई झूठा पीर बन के तावीज़ दे दे और आप उस पर यकीन कर लें। इस पर आपने ध्यान रखना है कि आपने लोगों के झूठ, और वो भी झूठ जो वो रिलीजन का लिबादा ओढ़ कर आपको देने की कोशिश करें, उससे आपने बचना है। आपने अपना जो आपका कनेक्शन है उस पर आपने फोकस करना है। आपका जो स्पाउस या साथी या पार्टनरशिप या जो रिलेशनशिप है उसमें ऐसे है कि जैसे हो सकता है कि आपको कोई देयर इज समथिंग न्यू, कुछ नई बात, कुछ नई कहानी। आपके घर के जो मसले मसाइल हैं, घरेलू हवाले से चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं, चीज़ें खुल के सामने आ सकती हैं, पुराने मसले नए सिरे से आ सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे तो ना आपका जो रोल है वो रेफरी का होगा कि लोगों को आपने रेफरी बन के तो दो जो टीमें लड़ रही हैं उनके बीच में आपको रेफरी बनना है। आपकी सप्ताह की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप की ज़िंदगी में जैसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ी है, और जैसे होता है ना समथिंग न्यू, नया आगाज़, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फाउंड टैलेंट, समथिंग न्यू एंड वेरी पॉजिटिव इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि कोई इंतहाई जो नाकारा इंसान, कोई इंतहाई बेकार, बदकिरदार, झूठा इंसान आपको डबल क्रॉस कर सकता है। आपने अपनी सुस्ती की वजह से
लेजी पन की वजह से ये उसको कामयाब होने का मौका आप दे सकते हैं. बी वेरी केयरफुल विद इट. आपकी जो आपकी हेल्थ वाइब है उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे आप होता है कि जैसे आपका एनर्जी लेवल लो लगता है, और एनर्जी लेवल लो के बाद जैसे इंसान बार बार हाथ धोना या बार बार एक ही काम करते चले जाना, थोड़ा सा ऑब्सेसिव आपका बिहेवियर इस हफ्ते हेल्थ के हवाले से लगता है. और आपकी जो लव वाइब है, लव वाइब में लगता है कि जैसे कहीं पर आपको इस हफ्ते दोबारा मोहब्बत हो सकती है, या पुराने वक्तों की कोई मोहब्बत दोबारा आपके सामने आ सकती है, या पुरानी कोई हॉबी जो है आपकी दोबारा आप उसे दोबारा शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना कारोबार आप दोबारा शुरू कर सकते हैं जिससे आपको प्यार हो, जो आपके लिए खुशी का बायस. आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको जैसे जो मैसेज है आपके लिए फाइनेंसेस और एजुकेशन में, वो है कि आप बड़ी ज़हानत से सारे मसलों को ओवरकम कर लेंगे. बस आपने एन टाइम पर लेजी नहीं होना. मे बी आप लेजीपन बार बार नजर आता है कि आपका लेजीपन जो है वो आपको परेशान कर सकता है. आपका मून मैसेज जो है इस हफ्ते मून ने आपके घर से गुजरना है, तो यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अब जो कंक्लूजन्स हैं, जो आपके जो भी मसाइल हैं उनका हल बहुत करीब है. जस्ट वेट फॉर ऑल द इश्यूज टू रिजॉल्व. आपका इस हफ्ते का लकी कलर बन रहा है ग्रे, और ग्रे बन रहा है ऐश ग्रे. ऐश ग्रे आपका लकी कलर बन रहा है. आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है जो आपके लिए वो एनर्जी लेके आएगा, जो आपके लिए वो दिस विल अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स यू, और वो आपका लकी चार्म है अ फ्लाइंग बटरफ्लाई.